آپ کو بتائیں اسموگ کے تدارک کے لیے نگران پنجاب حکومت کے خصوصی اقدامات۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں آج اور کل سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ محکمہ اسکول اور ہائر ایجوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آج اور کل مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی، اتوار کو کاروبار بند ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس بھی دینے کا اعلان ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار سکول بند رہیں گے۔ ان اضلاع میں لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین شامل ہیں۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی، اتوار کو کاروبار نہیں ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا کہ لاہور سمیت 6 ڈویژن میں جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اتوار کو تمام مارکیٹیں اور ادارے بند رہیں گے۔ مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنڈے کو پوری مارکیٹس ہر طرح کی وہ کلوز ہوگی، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تمام 6 ڈویژن میں انشور کریں گی کہ سنڈے کو ہر طرح کا کاروبار بند ہو۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ لاہور میں 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کو بھی لیز پر ای بائکس دی جائیں گی۔ مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا، صرف سائیکل آ سکیں گے۔ 10,000 الیکٹرک بائک اسٹوڈنٹس کو ہم سبسڈی پہ دیں گے۔ سنڈے کے دن مال روڈ صبح سے لے کے شام 5 بجے تک سائیکلنگ کے لیے ہوگی صرف۔ آپ مین مال روڈ اس سے گزر سکیں گے سائڈوں سے جو اس کو کراس کر رہی ہیں، لیکن مین مال روڈ صبح سے لے کے شام 5 بجے تک صرف سائیکل والوں کے لیے کھلی ہوگی۔ محسن نقوی نے عوام سے ماسک کی پابندی کرنے کی تلقین کی۔ بادل ہوئے تو 29 اکتوبر کو لاہور میں مصنوعی بارش کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ لاہور میں ایئر فلٹر ٹاورز لگانے کے MOU پر دستخط بھی ہوئے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں اسموگ سے چھٹکارے کے لیے مصنوعی بارش برسانے پر غور جاری ہے۔ بارش برسانے کے لیے بادلوں پر خصوصی کیمیکلز چھڑکائے جاتے ہیں۔ لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ۔ اسموگ نے تو لاہور میں کچھ یوں قدم جمائے ہیں کہ انہیں اکھاڑنے کے لیے تمام تدابیر رائے گاں جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب مصنوعی بارش برسانے کی ترکیب استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مصنوعی بارش برسانے سے اسموگ کی شدت میں کمی لائی جا سکے گی۔ مصنوعی بارش بادلوں پر خصوصی کیمیکلز چھڑک کر برسائی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے نشاندہی کی جاتی ہے کہ کن بادلوں پر کیمیکلز چھڑک کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بادلوں پر سلور آیوڈائڈ اور دیگر کیمیکلز چھڑکے جاتے ہیں، جبکہ اس مقصد کے لیے خصوصی ہوائی جہاز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ممکنہ طور پر لاہور میں 28 یا 29 نومبر کو یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اسموگ نے کیا سانس بھی لینا محال۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے آنے والے دنوں میں اسموگ کم ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب ڈائریکٹر نسیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے حکومت مصنوعی بارش سمیت ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دیکھتے ہیں زاہد عابد کی یہ رپورٹ۔ اسموگ سے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نسیم الرحمان نے کہا کہ اسموگ کا خطرناک مرحلہ گزر چکا ہے، مگر خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے، فرنس ملز چلانے اور ٹریفک سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر مشرقی سرحد پار سے آنے والی ہوائیں دھواں اور کثافتیں لاتی ہیں۔ یہ جو پیریڈ ہے 28-29 اکتوبر سے لے کے 10-11 نومبر تک، اس میں ہم نے آبزرو کیا پچھلے کچھ سالوں میں ونڈ ڈائریکشن ہماری طرف ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم افیکٹ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ خود بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اگر 400 پلس بھی ہوتا ہے تو ان کا 600 پہ پہنچ جاتا ہے۔ نسیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے حکومت مصنوعی بارش سمیت ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹریفک روانی بہتر کرنے کے لیے سگنل فری کوریڈورز بنا رہے ہیں۔ فرنس فیکٹریز کو بھی اسموگ فری ٹیکنالوجی پر لانا ہے۔ حکومت پنجاب جو سگنل فری کر رہی ہے کوریڈورز کو، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ٹریفک رکتی ہے وہاں پہ کثافتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے اقدامات اسی لیے ہیں کہ تاکہ جہاں جہاں سے کوئی اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ ختم ہو۔ بھٹا آپ کا زگ زیگ پہ جا چکا ہے، 2 اسٹروک رکشہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، چیزیں امپرومنٹ کی طرف ہیں۔ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نسیم الرحمان نے مزید یہ بھی کہا کہ فضائی آلودگی عالمی مسئلہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک بروقت اقدامات کر کے اسموگ سے جان چھڑوا چکے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بھی جلد اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔
स्मोक से बिजली के तरसीली निज़ाम के मुतासर होने का खदशा। लेस्को इंतज़ामिया ने सिस्टम को स्मोक के नुकसानात से बचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। हाई ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत की जा रही है। लेस्को इंतज़ामिया ने सिस्टम को स्मोक के नुकसानात से बचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। आपको बताएं, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत और धुलाई की जा रही है। एक्सियन SS एंड टी डिवीज़न शालीमार मलिक मोहम्मद अशफाक का कहना है कि स्मोक पासिंग ब्रेकडाउन और दीगर तकनीकी खराबियों का बाइस बनती है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डिस्क वॉशिंग यूनिट से सिस्टम को महफूज रखने के लिए काम किया जाता है। बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं, ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 487 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 8 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324, परचून रेट 336 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो आपको आगाह करें, आज के रेट्स के हवाले से ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 487 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 8 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324, परचून रेट 336 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको आगाह करें, ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 487 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 8 रुपये फ़ी किलो कमी नज़र आ रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए रेट्स के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किया गया, उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। ब्रायलर की सप्लाई बेहतर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतें 12 रुपये फ़ी किलो तक कम की गई हैं। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 499 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था, उसमें 12 रुपये कमी के बाद आज 487 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 324, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 336 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है और अंडे की कीमतें जो सरकारी रिलीज है उसमें 331 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये की मुकर्रर की गई है। तमाम परचून बाजारों में अंडे जो है 340 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। खाद की ब्लैक में फ़रोख्त ने काश्तकारों को दिन में तारे दिखा दिए। खाद की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फ़रोख्त से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ 56 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। आलम यह हो चुका है कि जैसे हर तरफ हाहाकार सी मची हुई है। कहीं महंगी बिजली का शोर तो कहीं महंगाई का फरियत सितम ढा रहा है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारे ज़रई शोबे में भी पैदा हो चुकी है कि इन दिनों गंदम के काश्तकार खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। जो रेट है उस रेट से हमें खाद मिल नहीं रही। तकरीबन 70 एकड़ हमारा रकबा है यहाँ पे, लेकिन खाद की वजह से हम नहीं बजाई नहीं कर रहे। खाद ਲੱਭ ही नहीं रही जी, ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ 100 200 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਜੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ। अव्वल तो खाद की दस्तयाबी ही बड़ा मसला बन चुकी है और अगर मिल भी जाए तो काश्तकार इसे इंतहाई महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनियों की DAP खाद के निर्ख 12,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन खाद डीलर्स 15 से 16,000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। यूरिया खाद की बोरी 3200 रुपये के मुकर्ररा निर्खों की बजाय 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि काश्तकारों को जो है वो मिलावट से पाक जो है वो कंट्रोल रेट पे फर्टिलाइज़र जो है वो दस्तयाब की जा सकें, जिनके लिए हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं नादर चट्टा साहब, वो भी फील्ड विजिट्स कर रहे हैं, तहसीलों में, ज़िलों में, डिवीजन्स में जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशात भी सामने आ रहे हैं। मसाइल का पैदा होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इनका हल ना किया जाना मज़ीद बेशुमार मसाइल को जन्म देता है। और अब अगर खाद की शॉर्टेज महसूस की जा रही है या फिर इसकी महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है तो फिर लामहला आगे चलकर इसके साथ गंदम की पैदावार पर भी पड़ेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।
दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने गंदम का पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत को टास्क सौंप दिया। ज़्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत किसानों को आगाही का आगाज कर दिया गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गंदम की काश्त शुरू। गंदम की डिमांड एंड सप्लाई बेहतर बनाने के लिए इस साल सूबाई पंजाब में गंदम की बवाई का हदफ 1 करोड़ 60 लाख एकड़ मुकर्रर कर दिया गया, जिससे 2 करोड़ 56 लाख मेट्रिक टन पैदावार का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। गंदम की काश्त के हदफ के हुसूल के लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर निगरानी महकमा ज़राअत की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी है। गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मुदस्सिर अब्बास ने बताया कि माह नवंबर के आखिर तक गंदम की काश्त हो जाना जरूरी है और ज्यादा पैदावार के लिए खादों का इस्तेमाल भी लाजमी है। गंदम की काश्त और उससे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप नवंबर का महीना जो है इसी के अंदर जो है वो गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। 20 नवंबर तक जो है वो गंदम की काश्त का सबसे मौजूद टाइम होता है। खादें ज़्यादा पैदावार की ज़ामन हैं और खादों के इस्तेमाल के लिए आप जो फास्फोरसी और पोटाश की खाद है उसको बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें और उसके बाद जो नाइट्रोजनी खाद है वो 2 बराबर एक साथ में पहली और दूसरी आबपाशी के साथ इस्तेमाल करनी है। महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और फील्ड अमले को काश्तकारों की रहनुमाई के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि गंदम का पैदावारी हदफ बआसानी हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फूड अथॉरिटी टीम का बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 130 किलो जाली शहद और दीगर माल तलब कर दिया। जाली शहद का धंधा करने वाले यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट में गंदगी थी। जंग आलूदा बर्तनों में खुले रंगों और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। 130 किलो जाली शहद, 10 किलो ग्लूकोज सिरप और दीगर माल तलब कर दिया है। जाली शहद के यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। शहरी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 हेल्पलाइन पर इतला दें। एक बार फिर आपको बताएं, मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने निरखों पर फरोख्त। मटर 300, अरवी 160, आलू 140, भिंडी 120, शलजम 100 रुपये किलो बिकने लगे। लहसुन 800, अदरक 780, टमाटर 180, प्याज 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। अनार 950, खजूर ईरानी 650, अंगूर 500 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको अपडेट करें, मार्केट में सब्जियों और फल मनमाने निरखों पर फरोख्त हो रहे हैं। मटर 300, अरवी 160, आलू 140, भिंडी 120, शलजम 100 रुपये किलो बिकने लगे। लहसुन 800, अदरक 780, टमाटर 180, प्याज 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। अनार 950, खजूर ईरानी 650, अंगूर 500 रुपये किलो में दस्तयाब। सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको आगाह करें, मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने निरखों पर फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रेट जारी किए गए मार्केट कमेटी की जानिब से, उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी जो हैं वो सरकारी नरफनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 118 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 140 के बरक्स 180 रुपये फ़ी किलो और लहसुन चाइना 600 के बरक्स 800 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत 580 रुपये मुकर्रर की गई है, तथा मार्केट में 780 रुपये फ़ी किलो तक अदरक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद आज 50 रुपये सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बैगन 40 के बरक्स 60 रुपये और मेथी 85 के बरक्स 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 1 रुपया महंगा करके 86 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में खीरा 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि फूल गोभी जो है 58 के बरक्स 90 रुपये और बंद गोभी 95 के बरक्स 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 85 के बरक्स 120 रुपये और शिमला मिर्च की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया, 82 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन इसके बरक्स मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू 270 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 400 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। केला दर चावल 115 के बरक्स 160 रुपये फ़ी दर्जन तक
जबकि अनार बेदाना 570 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, शहर में स्मोक के बादल ना छट सके। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के डेरे बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। आमिर टाउन के इलाके का AQI 564 और माल रोड का 520 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म है। स्मोक के बाइस तालीमी इदारे आज से 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। मार्केट्स को भी आज और कल दोपहर 3 बजे के बाद खोलने का हुक्म है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल है बद से बदतरीन होती जा रही है। रोज़ की बुनियाद पर आज भी जो AQI इंडेक्स है वो 520 तक जो है शहर लाहौर में औसत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना था कि इस हद तक AQI के अंदर इजाफा नहायत ही खतरे की अलामत है और शहरियों के लिए नहायत ही मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जितने भी शहरी हैं कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं और कोशिश करें बिला ज़रूरत घरों से जो सफ़र है उसको उससे बिल्कुल गुरेज करें। इतवार मतलब अगले 3 रोज़ पीर तक जो है तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया है। मार्केटों को भी 3 बजे के बाद खुलने की इजाज़त दी जाएगी। आज 3 बजे तक जो है मार्केट से बंद रहेंगी। शहर में स्मोक की सूरत हाल में बहुत खतरनाक हद तक जो है उसमें इजाफा नजर आता है। अब देखना ये है कि इसको किस तरह काबू पाया जाएगा। रोज की बुनियाद पर हजारहा जो स्मोकी व्हीकल्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है ताकि स्मोक के अंदर जो है मजीद इजाफे से बचा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी में देखने में आ रहा है कि रोज की बुनियाद पर स्मोक के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा होता है। जैसे कि मैं पहले ही बताया आपको कि स्मोक का जो AQI आज औसत AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 520 तक शहर लाहौर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है खतरे की अलामत भी बताया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करते चले मौसम की, तो मौसम की बात करें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत इस वक्त जो है शहर लाहौर में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात कहना था कि कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, पानी की इंटेक जो है उसको ज्यादा रखें और कोशिश करें बिला जरूरत सफर से गुरेज करें। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए, मास्क का इस्तेमाल खास तौर पर यकीनी बनाए, बार बार आंखों पर जो है पानी की छींटे मारे और पानी का इस्तेमाल जो पानी की वाटर इनटेक है, पानी की पीने की मिकदार उसको भी बढ़ाकर रखें ताकि गला आपका साफ रहे, क्योंकि स्मोक की वजह से फेफड़ों और सांस की बीमारियां बहुत जन्म ले रही हैं। महकमा मौसमियात कहते हैं कि शहरियों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि स्मोक से बचाव के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल पैरा हो ताकि स्मोक के मुज़र जो है साइड इफेक्ट्स उनसे महफूज रह सके। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा सेहतियाब हो गई। लाहौर जनरल हस्पताल के डॉक्टर्स ने 4 माह बाद रिजवाना की सेहतियाबी का बाकायदा ऐलान कर दिया। बच्ची ने वॉक के साथ नॉर्मल खुराक भी खाना शुरू कर दी। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना को 4 माह कबल इंतहाई बुरी हालत में लाहौर के जनरल अस्पताल में लाया गया। इस्लामाबाद के एक सिविल जज के घर काम करने वाली रिजवाना का जिस्म जख्मों से चूर था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 15 साला रिजवाना के इलाज पर भरपूर तवज्जो दी गई। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने बच्ची के इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद जफर और प्रोफेसर नुदरत सुहेल ने रिजवाना की सेहत से मुतालिक निगरान पंजाब हुकूमत को हर लम्हा आगाह रखा। रिजवाना ने अब चहलकदमी के साथ नॉर्मल खुराक लेना शुरू कर दी है। रिजवाना की सेहत याबी पर उसके घर वाले खुशी से निहाल हैं। अहले खाना ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से तिबी मुआयने के बाद रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों की हालत बेहतर से बेहतर बनाने में कोशां। मोहसिन नकवी कहते हैं मेयो अस्पताल की 210 बेड्स पर मुश्तमिल एमरजेंसी अगले 45 रोज़ में काम शुरू कर देगी। सूबे भर के अस्पतालों के लिए नए बेड्स खरीदे गए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान, VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अय्याज, CEO मेयो हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामद भी वज़ीर आला के हमरा थे। मोहसिन नकवी ने बताया कि आइंदा 45 रोज़ में मेयो हॉस्पिटल की 210 बेड्स की एमरजेंसी को फंक्शनल कर दिया जाएगा। मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब भर में 20,000 बेड्स खरीदे गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब के हॉस्पिटल्स में जारी तरक्याती प्रोग्राम्स जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।
सियासी मंजरनामे से खबर यह है, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कायद नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ गए हैं। महंगाई की गज़ा का मौसम जाने को है, आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। गरीबों को पहले मायूस किया, ना आइंदा करेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से चौधरी आबिद रजा कोटला की क़यादत में गुजरात से साबिक अरकान पार्लियामेंट, साबिक टिकट होल्डर्स और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम मुतमईन है कि कायद नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ गए हैं। कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खिज़ां से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। सनत और तिजारत का पहिया चलेगा, गरीब का चूल्हा जलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी खुद इन्हिसारी की मंजिल से हमकनार करेंगे। मुलाकात करने वालों में नवाबजादा ताहिरुल मलिक, राजा असलम खान, नवाबजादा गजनफर अली, चौधरी अलीमुल्ला वड़ाइश और दीगर रहनुमा शामिल थे। दूसरी जानिब पतझड़ की तरह पीटीआई खिलाड़ियों की विकेटें गिरने लगी। लाहौर डिवीजन से पीटीआई को बड़े सियासी झटके। 5 बड़े खिलाड़ियों ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी को खैराबाद कहने वालों का मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ में रहते हुए मस्बत सियासत की रविश कायम नहीं रह सकती। देखते हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। पीटीआई को सियासी मंजरनामे पर बड़े धचके। लाहौर डिवीजन से तहरीक इंसाफ के 5 बड़े रहनुमा और पार्टी के टिकट होल्डर्स ने पीटीआई को खुदा हाफिज कह दिया। लाहौर से पीटीआई के पंजाब असम्बली के 2 उम्मीदवार और टिकट होल्डर अब्दुल करीम खान पीपी 148 और खालिद घुरकी पीपी 150 ने पार्टी छोड़ दी। शेखुपुरा से पीटीआई के नायब सदर और एमपीए के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इकबाल भी पीटीआई को खुदा हाफिज कह गए। ननकाना साहिब से पीटीआई के एनए 111 और पीपी 132 के मजबूत उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा ने भी राहें जुदा कर लीं। इसी तरह कसूर से पीटीआई के एनए 131 के उम्मीदवार नदीम हारून ने भी पीटीआई से मुंह मोड़ लिया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि मुल्क में मुस्बत सियासत की रविश को कायम रखना चाहते हैं, जो पीटीआई में रहकर नहीं हो सकती। अदालत के हुक्म पर मोनस इलाही के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद कर दिया गया। मोनस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज़ हो गया। मोनस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई है। तफसील इस रिपोर्ट में। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए एफआईए ने मोनस इलाही के अकाउंट और प्रॉपर्टीज को मुंजमद कर दिया। एफआईए दस्तावेजात के मुताबिक मोनस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई। दस्तावेजात में ये भी सामने आया कि मोनस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। मोनस इलाही की कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद किया गया। दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर मोनस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक एफआईए ने मोनस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। इंटरपोल से मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक निगरान पंजाब हुकूमत ने मोनस इलाही के हवाले से तमाम डेटा एफआईए के हवाले कर दिया है। परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला मुअत्तल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वकला को केस की तैयारी के लिए मज़ीद मोहलत दे दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। परवेज़ इलाही ने इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला दिया, जिसे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुअत्तल कर दिया। अदालत सिंगल बेंच का ये हुक्म कालअदम करार दे। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत नहीं। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं, लाहौर के इलाके अस्करी 10 के करीब तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके अस्करी 10 के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। तेज़ रफ्तारी के बाइस गाड़ी उलटकर कई गज दूर जा गिरी। मौजाना तौर पर कार सवार 3 अफराद बच गए। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मी मोटरसाइकिल सवार को मौके पर तिब्बी इमदाद दी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LDA टीमों की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। जोहर टाउन और मुल्हका स्कीमों में 23 से जायद गैर कानूनी तामीरात और इमलाक को मिसमार और सील कर दिया गया। कारपोरेशन की टीमों ने शहर में ऑपरेशन के दौरान 213 से जायद तजावुजात को हटा दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। LDA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। टीमों ने ज़हीर एवेन्यू में गैर कानूनी हॉल और दुकान को मिसमार कर दिया। हाई कोर्ट सोसाइटी 2 में रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी दुकान को गिरा दिया गया। खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी पर गैर कानूनी कमर्शियल तहखाने की तामीर मिसमार कर दी गई। प्लॉट नंबर 24 EPIA सोसाइटी गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर सील। दूसरी तरफ कॉरपोरेशन की टीमों ने शहर में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर कॉरपोरेशन की टीमों ने ऑपरेशन में 213 से ज्यादा तजावुजात को हटा दिया। 114 अफराद को जुर्माने और चालान नोटिस जारी किए गए। 195 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत व बहाली का काम मुकम्मल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर आगाही सेमिनार हुआ। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहीम हसन मुराद का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के मसाइल को हल करेगा। स्टेक होल्डर्स माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए मिलकर काम करें। देखते हैं ज़ैन अली की ये रिपोर्ट। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर आगाही सेमिनार। निगरान वज़ीर इब्राहीम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी और माहरीन की शिरकत। बल्कि गाड़ियों को मैन्युफैक्चरर्स ने मसाइल बताए और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहीम हसन मुराद ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स मिलकर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए काम करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है पंजाब का, इसका ये गोल है, ये विज़न है अंडर चीफ मिनिस्टर सैयद मोहसिन नकवी कि हम एक ट्रांसपोर्ट के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। और इसी के सिलसिले में हमने एक प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव किया है। सेक्रेटरी साहब ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। तकरीबन 35 ग्रीन बसेस जो हैं ग्रीन लाइन लाहौर के अंदर जल्द इंशाल्लाह लॉन्च होंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने इलेक्ट्रिक रिक्शे के हवाले से पॉलिसी बना ली है। मैन्युफैक्चरर्स की तजावीज़ और सिफारिशात का काबीना इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। आपकी तमाम तजावीज़ को हम एक वाइट पेपर की शेप देंगे सो दैट वी मिनट एवरीथिंग। जो स्टेप्स पंजाब के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने या दीगर महकमों ने लेने, जो चीज़ें और तजावीज़ हमने हुकूमत पंजाब यानी काबीना के सामने रखनी है, I assure you we will do that. सेमिनार में 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों को नमूने के तौर पर पेश किया गया। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुआयना भी किया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के दीगर वसाइल से रेवेन्यू कमाने के मंसूबे ठप। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की मार्केटिंग टीम 6 माह में एक भी मंसूबे पर अमल दरामद ना करा पाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मई में प्रोजेक्ट से नॉन फेयर रेवेन्यू कमाने के अहकामात जारी किए थे। बिजनेस प्लान के तहत ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के दीगर वसाइल से 6 अरब रुपए कमाए जाने थे। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस पर स्टॉल, शॉप्स, ATM और वेंडिंग मशीनें नस्ब होनी थीं। अथॉरिटी की मार्केटिंग टीम 6 माह में एक भी मंसूबे पर अमल दरामद ना करा पाई। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहीम मुराद का कहना है कि नॉन फेयर रेवेन्यू प्लान को हतमी शक्ल दे चुके हैं। कंसल्टेंट की सिफारिशात की बुनियाद पर आउटसोर्सिंग का अमल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिजिटलाइजेशन सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने LWMC आउटफॉल रोड वर्कशॉप का दौरा भी किया। इमरान अकबर की रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर LWMC आउटफॉल रोड वर्कशॉप पहुंचे, वर्कर्स की हाजिरी चेक की और वर्कशॉप का मुआयना किया। आमिर मीर ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिजिटलाइज सिस्टम का इफ्तिताह किया। CEO बाबर साहिबुद्दीन ने कंपनी डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। आमिर मीर ने LWMC की डिजिटलाइजेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो डिजिटाइजेशन की जानिब आ गई है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी हुकूमत की एक प्रायोरिटी है कि ट्रांसपेरेंसी हो मामलात में। तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मैनुअल से, जहाँ जहाँ भी इस वक्त मैनुअल सिस्टम चल रहा है, वो डिजिटाइजेशन की तरफ आएँ ताकि मामलात जो हैं वो
ट्रांसपेरेंट हो जाएं। CEO बाबर साहिबदीन ने कहा कि कमर्शियल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम डिजिटलाइज किया गया है। LWMC ने इस साल डिजिटाइजेशन की जो ड्राइव की है, उसी ड्राइव में जैसे हमने अपनी पूरी फ्लीट को, उसके रूट्स को डिजिटाइज़ किया, उसके बाद हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे उसकी डिजिटाइजेशन के स्टेप में हमने जो हमारा रिसोर्स जनरेशन डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसकी डिजिटाइजेशन की है। और इसी तरीके से वर्कशॉप्स जो हमारी 5 वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे 1500 से ज़्यादा गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है उसकी डिजिटाइजेशन की है। और ये डिजिटाइजेशन ना सिर्फ इस इदारे को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगी बल्कि इसके साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी। GM वर्कशॉप आरिफ खलील ने बताया कि 3 बिन तैयारी में करोड़ों रुपए रेवेन्यू बचाया गया है। कैमरामैन बाबर रियाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।